A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th business studies. So after the chapter 6, that is staffing, we are moving to chapter 7, that is directing. Okay. So in this chapter what we are going to discuss, so there are some topic according to the CBSE syllabus. So first of all we will discuss about the, that is, concept and the importance. So what is the concept of directing, so what we meant by the directing, and what are the importance of the directing in the business management. Okay, so after that we will discuss about the elements of the directing. Okay, so what are the different elements of the directing. Next topic we will discuss about the motivation. Okay, motivation. So in the motivation we will discuss about the concept of motivation, Maslow hierarchy of needs, financial and non-financial incentives. Next topic that we will discuss about, that is leadership. Okay, so in this we will discuss about the that is concept of leadership, styles. That means ki the leadership would be authoritative, democratic, and the laissez-faire. Okay, so we will discuss all these authoritative, democratic, and laissez-faire one by one when we discuss about the leadership. Okay, so after that we will discuss about the communication. Okay, communication we will discuss. So in the communication we will discuss about the concept of the communication, formal and informal communications, barrier to effective communication. So what are the different barriers for the effective communication and how to overcome the barriers. Okay, so where there are different barriers in front of the communication, so how we can remove the all the communication. Okay, so in this chapter we are going to discuss all these topic. Okay, so firstly we will start with the meaning and introduction of the directing. Okay, so directing function of the management is concerned with the instructing, guiding, and inspiring inspiring the inspiring and motivating the employees in the organization so that their effort result in achievement of organizational goal. Okay, so डायरेक्टिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो बेसिकली किससे कंसर्न होता है इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मतलब किसी को भी क्या करना, जैसे इंस्ट्रक्ट करना, उनको बताना, उनको गाइड करना कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं, इंस्पायर करना उनको, अगर कोई वो अच्छा काम कर रहे हैं देन any business manager, board of director will inspire all the workers or the supervisors और द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, उनको क्या करता है, वो इंस्पायर करता है कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो. एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट देयर एफर्ट रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट क्या होगा, देयर एफर्ट्स, उसका उनका जो एफर्ट होगा वो एक, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल चल रहा है उसको फुलफ़िल करने में क्या होगा, एक प्रॉपर रिजल्ट हमें देगा. कैसे, डायरेक्शन का सिंपल मतलब है, आपको जैसे पता है दैट यू आर इन क्लास 12th and you have no idea that what you will do after the class 12. So when any individual give you any kind of direction that after 12th you can do like BCom, you can do CA, ICWA, CS, and you can also go through in the management area. So when any individual gives you any kind of direction, so it will give the some a positive result in your life. Okay, so same like that, direction also plays a very important role in
all aspect and also in the management. Okay, so in the management it also concerned with the instruct करना, guide करना, इंस्पायर करना, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे जो भी उनका एफर्ट्स होगा वो कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, हम लोग सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, प्लानिंग, कि जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग को अचीव करने में वो क्या करेगा, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, अभी आपको पता ही नहीं है कि अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो आप कोई भी रिज़ल्ट को प्रॉपरली उसका कोई आउटकम नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जो एक स्टेप कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही नहीं है कि ये करना हमारे लिए ज़्यादा सही है, ये करना ज़्यादा सही है, तो आप उस टाइम क्या हो जाते हो, एकदम कंफ्यूज्ड हो जाते हो। अभी उसी केस में आपको कोई मोटिवेट करता है, आपको डायरेक्ट करता है, नहीं आप जो ये काम कर रहे हो वो सही है, तो आप उससे क्या कर सकते हो, एक बेटर रिजल्ट पा सकते हो। ठीक है, सो सेम वैसी मैनेजमेंट में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आफ्टर द स्टाफिंग फंक्शन, after the staffing function the right person is placed at the right position in the organization. ठीक है, स्टाफिंग फंक्शन में क्या हुआ था कि जो राइट पर्सन है वो राइट प्लेस पे है, एट द राइट पोजीशन, राइट पर्सन इज प्लेस्ड, जो राइट मतलब जैसे जो जिस काम के लिए बना है वो उसी पोजीशन में है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि जैसे आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको उस एरिया में डाल दिया गया जहाँ किसी इंडिविजुअल की हिस्ट्री अच्छी है, तो उस एरिया में वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्पेशलाइजेशन किस में है, मैथ्स में है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का कोई एक अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है और एक अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है, अगर वो स्पेशलाइजेशन में उसे वहाँ पे वर्क दिया जाएगा तो वो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा बेटर रिजल्ट लेकर आएगा। तो सेम वही है कि स्टाफिंग फंक्शन में क्या था, द राइट पर्सन इज़ प्लेस्ड एट द राइट पोजीशन, राइट पर्सन प्लेस हुआ कहाँ पे, राइट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, but actual work begin only when these person get instruction from their superior. but actual work start तब हुआ जब ये जो सारे पर्सन हैं वो इंस्ट्रक्शन पाए कहाँ से, अपने सुपीरियर से। ठीक है, मतलब कि ठीक है, हमें पता चल गया कि राइट पर्सन को हम लोगों ने राइट प्लेस पे रख दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, बट उन्हें नहीं पता है कि अब वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस राइट प्लेस पे हैं उन्हें काम क्या करना है। जब तक उन्हें प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं मिलेगा, जब तक उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें यहाँ पे काम क्या करना है, तो वो कभी भी कोई बेटर रिजल्ट नहीं ला सकते। ठीक है, सो बट एक्चुअल वर्क बिगिन, एक्चुअल जो वर्क है वो तब स्टार्ट होगा व्हेन दीज पर्सन गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर, वो इंस्ट्रक्शन पाएंगे कहाँ से, अपने सुपीरियर से। सो डायरेक्टिंग डज नॉट मीन ओनली इंस्ट्रक्शन बट इट ऑल्सो इंक्लूड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज़ व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। ठीक है, सो डायरेक्टिंग का मतलब यही नहीं है कि बस इंस्ट्रक्शन दो, बट इट ऑल्सो इंक्लूड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज़, मतलब कि बस इंस्ट्रक्शन देना ही नहीं है बल्कि क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज भी करना है, उनको देखना है व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, जो अपने जॉब को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। मोटिवेटिंग देम टू परफॉर्म मोर एफिशिएंटली, उन्हें मोटिवेट करना है कि वो ज़्यादा एफिशिएंटली क्या करे, काम करे। एंड लीडिंग देम टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एंड लीड करना है उनको, लीडिंग देम टूवर्ड्स दी, उन्हें आगे कोप अप करना है, मोटिवेट करना है, जैसे वो अपने गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। So you can see here that the different definition is given by the different authors. So first one is Ernest Dale is given that the directing is telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability. मतलब कि डायरेक्टिंग क्या करता है, वो पीपल को बताता है कि क्या करना है। ठीक है, अभी जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कहीं भी हो और आप हो वहाँ पे, बट यू डोंट नो दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको पता ही नहीं है वहाँ पे आपको करना क्या है, तो
ये क्या है, यही कौन बताता है, यही आपका डायरेक्शन बताता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपको डायरेक्ट करता है कोई सुपीरियर कि आपको ये करना है, एंड सीइंग दैट, और उन्हें देखना दैट कि दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, मतलब जो उनकी एबिलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको भी देखना। ऐसा नहीं है कि बस उनको बस बोल देना कि वो क्या कर रहे हैं, बट उनको ये भी वॉच भी करते रहना कि वो प्रॉपरली वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है डायरेक्शन इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। डायरेक्शन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है दैट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर डिजाइंड टू इनकरेज सबॉर्डिनेट्स टू वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो क्या करता है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं विच आर डिज़ाइंड, वो ऐसे डिज़ाइंड होती हैं कि जो भी उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं, जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो सारे अपने वर्क को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कर रहे हैं कि नहीं, विथ मिनिमम टाइम एंड विथ मिनिमम कॉस्ट वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यही नहीं डायरेक्शन का मतलब है कि वो काम कर रहे हैं, नहीं वो काम कर रहे हैं, सारा काम अच्छे से कर रहे हैं, बट नहीं, वो काम कर तो रहे हैं बट वो काम भी क्या होना चाहिए, इफ़ेक्टिवली भी होना चाहिए और एफिशिएंटली भी होना, मतलब टाइम भी कम लगे और विद द मिनिमम कॉस्ट भी हो और राइट वर्क हो। ऐसा नहीं हो कि काम किया बट बाद में पता चला कि वो काम ही पूरा गलत था, नहीं, उसमें क्या आना चाहिए, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ विलियम न्यूमैन का है दैट डायरेक्टिंग डील्स विद द स्टेप्स अ मैनेजर टेक्स टू गेट सबॉर्डिनेट एंड अदर्स टू कैरी आउट प्लान्स, ठीक है। डायरेक्टिंग डील क्या करती है, डील्स विद द स्टेप्स अ मैनेजर, मैनेजर को स्टेप्स बताती है, टेक टू गेट सबॉर्डिनेट्स, मैनेजर टेक्स टू गेट सबॉर्डिनेट एंड अदर्स टू कैरी आउट प्लान। अदर जो भी मैनेजर, वो क्या है कि डिफरेंट सबॉर्डिनेट्स को क्या करना, सबॉर्डिनेट्स को सारे प्लान्स को बताना और उस प्लान को क्या करना, प्रॉपरली वर्क करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्शन फंक्शन, डायरेक्टिंग फंक्शन, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्टिंग। तो इसमें सबसे पहला है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग क्या करता है, एक्शन को इनिशिएट करता है। अदर फंक्शन प्रिपेयर अ बेस फॉर सेटिंग, अदर फंक्शन प्रिपेयर अ बेस और सेटिंग ऑफ एक्शन, ठीक है। अदर फंक्शन क्या करते हैं, बेस को प्रिपेयर करते हैं और एक्शन को सेट करते हैं। दैट इज़ हाउ एक्शन हैज़ टू बी कैरीड ऑन द डायरेक्टिंग, इनिशिएट और स्टार्ट एक्शन, ठीक है। सो हाउ एक्शन हैज़ टू बी कैरीड, जो भी एक्शन है वो कैसे कैरी होंगे ऑन द डायरेक्टिंग, ठीक है, एंड इनिशिएट और स्टार्ट एक्शन, की एक्शन कैसे स्टार्ट होंगे, बाय गिविंग डायरेक्शन और द इंस्ट्रक्शन द मैनेजर गेट द वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब डायरेक्शन या कोई भी इंस्ट्रक्शन मैनेजर दे देता है तो उसके बाद क्या होता है, जो भी वर्क है वो ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग फंक्शन। सो डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। डायरेक्टिंग क्या हो गया, ये क्या है, कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस अभी चल रहा है फिर जैसे ही डायरेक्शन एक बार सबको दे दिया फिर वो बंद हो जाएगा, नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेज पे डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर वो काम गलत कर रहा है तो उस टाइम भी डायरेक्शन देना पड़ता है कि नहीं, दैट यू डिड रॉन्ग, आपको ऐसे करना चाहिए। अगर वो सही कर रहा है देन इन दैट केस you should motivate managers or the superior should motivate the all the employees that you are doing very well and you can continue like this so that we can fulfill our objectives। हम अपने objectives को क्या है as early as possible क्या कर लेंगे, fulfill कर लेंगे। So a manager cannot just
रेस्ट आफ्टर द इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजर क्या करेगा, एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया फिर उसके बाद आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, अरे अब तो एक बार दे दिया है अब तो ये काम होता रहेगा, अब क्या है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ही हैज़ टू कंटिन्यूसली गाइड, उसको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली गाइड करना पड़ेगा, सुपरवाइज भी करता रहना पड़ेगा, एंड मोटिवेट हिज सबॉर्डिनेट, और उसको अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट भी करते रहना पड़ेगा। ही मस्ट कंटिन्यूसली टेक स्टेप्स टू मेक श्योर दैट द ऑर्डर एंड द इंस्ट्रक्शंस आर कैरीड आउट प्रॉपरली, उसको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली स्टेप्स भी लेना पड़ेगा ये श्योर करने के लिए कि जो भी ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपरली कैरीड आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो द नेक्स्ट फीचर इज डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, मतलब जो डायरेक्शन है वो क्या है, उसको वो हर एक लेवल पे उसकी नीड होती है। सो डायरेक्टिंग इज़ अ परवेसिव फंक्शन as it is performed by the manager at all level and in all location। ठीक है, डायरेक्टिंग क्या होती है, एक परवेसिव फंक्शन होती है, मतलब ओवरऑल इसकी नीड होती है एज इट इज़ परफॉर्म बाय द मैनेजर्स, बिकॉज ये कौन परफॉर्म करता है, बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल, हर एक लेवल पे मैनेजर्स को क्या करता है, परफॉर्म करता है, एंड इन ऑल लोकेशन, हर एक लोकेशन पर भी। सो एवरी manager has to supervise, guide, motivate and communicate with his subordinate to get things done। ठीक है, सो एवरी मैनेजर क्या है, हर एक मैनेजर सुपरवाइज करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है और अपने जो भी सबॉर्डिनेट हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता है सो दैट जो वर्क है वो ईज़िली हो सके। ठीक है, सो however the time spent in the directing is comparatively more at operational level of management। okay, so the time spent हो रहा है in डायरेक्टिंग में is comparatively more at operational level of management। ठीक है, जो भी ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कि जो भी हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट वर्क्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा द टाइम स्पेंट इन डायरेक्टिंग इज़ कंपैरेटिवली मोर। ठीक है, जो टाइम स्पेंट हो रहा है किस पे, डायरेक्टिंग में, वो ज़्यादा टाइम स्पेंट हो रहा है एट दी एज़ कंपेरिजन टू ऑपरेशन लेवल, जो भी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है, दैट मीन्स कि जिसमें डायरेक्टिंग में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। क्यों, क्योंकि सब कुछ डिसाइड किया जाता है कि सारे एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करना है। सो डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस वेयर एवर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट। ठीक है, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस तब वहाँ पे काम होता है, कंटिन्यू होता है जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट, जहाँ पे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग क्या है, वो टॉप से बॉटम में फ्लो करता है, टॉप टू बॉटम में। सो डायरेक्शन आर गिवन बाय द मैनेजर टू देयर सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, डायरेक्शन कौन देता है, डायरेक्शन आर गिवन बाय द मैनेजर, जो मैनेजर होता है वो डायरेक्शन देता है किसको, अपने सबॉर्डिनेट्स को। ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन देता है। सो एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट एंड टेक डायरेक्शन फ्रॉम इमीडिएट बॉस। ठीक है, एवरी मैनेजर क्या, हर एक मैनेजर डायरेक्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट को एंड टेक डायरेक्शन लेता है फ्रॉम द इमीडिएट बॉस, जो भी उसके इमीडिएट बॉस हैं उनसे वो तुरंत ही एक डायरेक्शन लेता है। एंड डायरेक्टिंग स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द लोअर लेवल। ठीक है, जो भी डायरेक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हाई लेवल पे, मतलब कि हम लोग जब बात करते हैं तो टॉप लेवल से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, लोअर लेवल तक चलता है। ठीक है,
सो ये हो गया आपका डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। सो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डायरेक्शन इज़ अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। डायरेक्टिंग क्या है? एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन है। द मेन मोटिव ऑफ द डायरेक्टिंग इज ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। मतलब जो मेन मोटिव है डायरेक्टिंग का वो क्या है? एक एफिशिएंसी लाना परफॉर्मेंस में। मतलब जो भी हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? एफिशिएंसी होनी चाहिए। डायरेक्टिंग कन्वर्ट्स प्लान इनटू परफॉर्मेंस। डायरेक्टिंग क्या करता है? जो भी प्लान हमने बनाया है उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करता है। सो परफॉर्मेंस इज़ द एसेंस ऑफ द डायरेक्टिंग। सो परफॉर्मेंस क्या है? एक एसेंस है, एक इम्पॉर्टेंट है फॉर द डायरेक्टिंग। एंड डायरेक्टिंग फंक्शन डायरेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल। और जो डायरेक्टिंग है वो क्या करता है? डायरेक्टिंग फंक्शन डायरेक्ट द परफॉर्मेंस को डायरेक्ट करता है ऑफ द इंडिविजुअल के टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसके अचीवमेंट? ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अचीवमेंट के लिए डायरेक्टिंग क्या करता है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायरेक्टिंग फंक्शन डायरेक्ट द परफॉर्मेंस को डायरेक्ट करता है ऑफ द इंडिविजुअल के टूवर्ड्स किसके लिए? किसके और? कि जैसे जो भी अचीवमेंट है हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट इज ह्यूमन एलिमेंट। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व स्टडी एंड मोल्डिंग ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। डायरेक्टिंग जो फंक्शन है वो क्या करता है? स्टडी करता है और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है और उसको मोल्ड कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। किसके? ह्यूमन बिहेवियर को। मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज़ को डायरेक्शन देते हैं तो वॉट एवर द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिचुएशन इज, सो फ्रॉम द डायरेक्शन वी कैन मोल्ड इट। हम लोग उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है। सो इट इम्प्रूव इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप रिलेशनशिप। ये क्या करता है? जो इंटरपर्सनल रिलेशन है और इंटर ग्रुप जो विद इन द ग्रुप कोई रिलेशन चल रहा है उसको भी इम्प्रूव करता है। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू वर्क विद देयर बेस्ट एबिलिटी। ये क्या करता है? ये इम्प्रूव करता है। किसको इम्प्रूव करता है? इम्प्रूव दी वर्क को इम्प्रूव करता है। ठीक है। विद दी देयर बेस्ट एबिलिटी, जो उनकी बेस्ट एबिलिटी है उस एबिलिटी के साथ किसी की एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना बेस्ट दे सकें। ओके। सो दीज ऑल आर दी फीचर्स ऑफ दी डायरेक्टिंग के फीचर्स हैं। देखिए इसमें क्या क्या है। ओके। सो फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शंस आर, फर्स्ट यहाँ पे क्या था जो हम लोग ने पढ़ा है? दैट इज डायरेक्टिंग क्या इनिशिएट करता है? एक्शन को इनिशिएट करता है। कंटिन्यूइंग फंक्शन है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एज एट एवरी लेवल, हर एक लेवल पे होता है। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की ओर फ्लो करता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, मतलब हम लोग कोई परफॉर्मेंस जो है उसको फुलफ़िल करने के लिए बात करते हैं डायरेक्शन में। एंड ह्यूमन एलिमेंट। ओके। सो इसमें देखिए क्या क्या है। डायरेक्टिंग फंक्शन में डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट करता है एक्शन को। डायरेक्टिंग गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑर्डर टू एम्प्लॉयज़,
इंस्ट्रक्शन देता है और एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देता है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, हर एक लेवल पे होता है। मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लीडिंग एम्प्लॉयज़ को, मतलब टॉप से सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट चलता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। एंड ह्यूमन एलिमेंट गिविंग द डायरेक्शंस टू द ह्यूमन, बिकॉज it studied the human behavior and can mold the behavior of the any human, right? And affect the performance of the employees की परफॉर्मेंस को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शंस। इम्पोर्टेंस क्या है डायरेक्टिंग फंक्शंस के? सो फर्स्ट वन इज़ टू इनिशिएट एक्शन, ये एक्शन को इनिशिएट करता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क तभी स्टार्ट करता है जब उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है। जैसे आपको ही कभी कोई आपको होमवर्क दिया जाता है या आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाने को दिया जाता है, असाइनमेंट बनाने को दिया जाता है, तो आप कब बनाते हो? जब आपको टीचर्स के थ्रू इंस्ट्रक्शन मिलता है दैट यू हैव टू सबमिट योर फाइल ऑन दैट डे। ठीक है, तो ये क्या है, एक आपको डायरेक्शन मिल रहा है, इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। ठीक है, एंड डायरेक्शन फ्रॉम द सुपीरियर, कोई भी इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन सुपीरियर से मिलता है। So in the directing functions, the superior direct the action of the employees towards the predetermined goal of the organization. ठीक है, so directing function में superior क्या करता है, एक्शन को करता है, डायरेक्ट करता है of the employees towards the, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक प्री डिटरमाइंड गोल होता है। आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक गोल को लेके ही चल रहा है, एक ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहा है, जिसको उसको क्या करना है, फुलफिल करना है। सो इफ़ द डायरेक्टिंग फंक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, अगर जो भी डायरेक्टिंग फंक्शन है, मतलब अगर प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है किसी भी इंडिविजुअल को, एम्प्लॉयज़ को, तो क्या होता है, सो देन इट्स रिजल्ट इज़ देन इट रिज़ल्ट इन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, एक डायरेक्शन जो है उसमें एक यूनिटी मिलेगी एंड अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल में भी क्या होगी, अचीवमेंट होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। इसमें क्या कह रहा है, सो इन दी ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट द डिफरेंट लेवल। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग, बहुत एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, हर एक लेवल पे कोई मैनेजर होता है, कोई सबऑर्डिनेट्स के पोस्ट पे होता है, कोई कोई फॉरमैन होता है, मतलब डिफरेंट लेवल पे लोग, कोई सुपरिटेंडेंट होता है, तो डिफरेंट लेवल पे लोग वर्क करते हैं एंड इन द डिफरेंट जॉब पोजीशन। किसी की जॉब पोजीशन भी अलग अलग होती, कोई हायर पे होता है, कोई मिडिल पे होता है, कोई लो पे होता है। सो द एम्प्लॉयज़ में डिफर इन देयर लेवल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, वो डिफ़र होते हैं अपने अथॉरिटी, उनके लेवल ऑफ अथॉरिटी पे भी वो डिफरेंट होते हैं, एंड द टाइप ऑफ जॉब असाइंड, और उनको जो भी जॉब क्या हुई है, असाइंड हुई है। सो बट ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, बट सारे ही क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एज दे आर दी पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वो सारे क्या हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के ही पार्ट हैं। ठीक है, सो व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल, जब एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, वर्क करते हैं
आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल पे वर्क करते हैं, देन देयर एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड, उनके एफर्ट्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड और मर्ज हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। एंड दे कोऑर्डिनेट ओनली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कब करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, डायरेक्टिंग फंक्शन के साथ ही वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। एज वाइल इशूइंग इंस्ट्रक्शन द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क कैन बी मेंटेन, ठीक है। जैसे एज वाइल जो इशूइंग इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन इशू हो रहा है, द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क कैन बी मेंटेन, जो वर्क की कंटिन्यूटी है वो भी क्या रहे, मेंटेन्ड रहे।